گناہ کے خلاف خدا کا کردار اور وہی لوگ انسان کی عاجزی، یہ دو چیزیں کیا میں نے کہا؟ گناہ کی خدا کا کردار اور بنی انسان کی عاجزی۔ آمین بھائی میرے ساتھ خدا کا کلام نکالے جن کے پاس خدا کا کلام ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کی 59 اور آیت نمبر 12۔ کیونکہ جی ادھر چلو جی آ گیا کہ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے، کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں، ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہے، بہت ہیں، کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دی، کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بدکاری کو جانتے ہیں۔ ہم اپنی بدکاری کو تشریح رکھیں۔ بائبل مقدس میں سب سے بڑا جو گناہ لکھا گیا ہے، اب سب اس سے واقف ہے، یاد ہے کسی؟ جی منسی کا دیکھ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرے خلاف بہتان باندھتا ہے اس کا تو گزارا ہو جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے خلاف کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ آمین۔ تو دوسرا جو گناہ ہے، ذرا تھوڑا سا آئیڈیا لگائیں کہ وہ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ آدم کا۔ جی آدم کا۔ پھر سوچیں، یہ میرے ہردے یعنی کہ میری روح کے اندر آیا ہے، کیا ہے دوسرا؟ گناہ سے توبہ نہ کرنا، گناہ سے توبہ نہ کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ میں نے پچھلا یاد ہے آپ کو، میں نے ایک آیت کوٹ کی تھی، کیا تھی؟ میں بتائیں جو پچھلا کلام سنایا تھا وہ کہاں سے کیا تھا؟ متی کی انجیل میں سے میں نے آپ کو گناہ کے تعلق سے سکھایا۔ تو گناہ سے توبہ نہ کرنا ایک یہ بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ سلاطین کی کتاب کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی توبہ نہیں کرتا خدا انہیں دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، اور دشمن کیا؟ ابلیس، جو ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ اس لیے آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے، کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہے، کتنی؟ بہت ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کی جلال سے، اس کے مطلب کہ خدا سے دور رہنا، اس کی حضوری میں نہ آنا، اس کی عبادت نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اگر ہم خدا کے حضور رہتے ہیں، اس کی عبادت پورے رواں سے کرتے ہیں، تو اس کے کیا فائدے کیا؟ یہ عاجزی ہے، خدا کی عبادت کرنا، اس کے حضور آنا اور اس کو اپنے بدن سے عزت اور جلال دینا، یہ واضح کرتا ہے
کہ خدا کی حضوری میں ہمیشہ کی زندگی گناہ نہیں، وہاں پر گناہ کی معافی ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب بنی نوع انسان اپنی عاجزی کے ساتھ، پورے بھروسے اور ایمان کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، تو خدا کا کردار کیا ہے وہاں پر کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، معاف کرے گا، نہ کہ قائم رکھے گا۔ اور یہ اختیار روح زمین پر ہے آج بھی، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے انجیل مقدس کے اندر یہ وعدے کر دیا کہ جن کے گناہ تم معاف کر دو۔ اب یہ اختیار زمین پر بھی ہے۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ آیت کوٹ کی تھی کہ جو کوئی آدمیوں کے قصور معاف کرتا ہے، خدا اس کے بھی قصور معاف کرے گا۔ معاف کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں روح زمین پر اپنے اندر عاجزی رکھنی ہے، یعنی کہ دوسروں کے لیے بھی جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو اس کی حضوری میں دینا ہے۔ اور کلسیوں کے خط کے اندر اس نے 30 باب کے اندر اور 25 میں کہتی ہے جو کوئی برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا۔ ہاں، کسی کی طرفداری نہیں کرتا وہ۔ آپ کہیں کہ میں اس کی برائی کر کے کسی اپنے عزیز و قارب کی کوئی بھی ہو، تو آپ اس سے بدلہ پائیں گے۔ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ بالکل پائیں گے، کیونکہ خدا سچا ہے، برحق ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، لا تبدیل، لا محدود، غیر مبدل۔ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ کیونکہ جو برائی کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا۔ ہاں، کسی کی طرفداری نہیں۔ رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ خدا نے ہمیں اس دنیا پر کس لیے بھیجا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ خدا نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ خدا نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا؟ عبادت کرنے کے لیے۔ عبادت کرنے کے لیے۔ کیوں عبادت کرنے کے لیے بھیجا؟ ہم گناہ نہ کریں۔ ہم گناہ تو شروع سے ہمارے اندر بناہ ہے، گناہ شروع ہی سے ہمارے اندر بناہ ہے۔ لیکن جو بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پر ذرا غور کریں۔ کیونکہ ہم ہر بات سے گناہ کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے کچھ لینے کے، یعنی کہ مسیح سے خدا سے کچھ لینے کے حقدار، ہم اس سے کچھ حاصل کرنے کے حقدار نہیں۔ جب ہم ایوب کی کتاب کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ایوب کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان کیا اور اس کی پکار کیا کہ اس کا خیال کرو۔ لیکن ہماری عاجزی، ہماری فروتنی، خدا کے حضور آنا، سچے دل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا، خدا اس کو گراں قدر سمجھتا ہے اور آسمان سے ہماری عاجزی کو سن کر کیا کرتا ہے؟ پھر ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ یہ ہم آج نئے سال کے اندر ہیں، جیسے کہ پاس صاحب دعا میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہم نئے سال کے اندر ہیں اور گناہ سے توبہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ کرنا بہت، یعنی کہ آپ
गुनाह की सिमत पर जा रहे हैं और फौरी आपका रुख खुदा की तरफ हो गया। तो ये चीजें नए साल के अंदर हमें बहुत जरूरी है कि अपने अंदर पैदा करें। दुनिया के अंदर हम बहुत कुछ पैदा कर रहे हैं, फसलें पैदा कर रहे हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं हम तैयार कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, लेकिन असल जो तैयारी है जिसको हमने तैयार करना है वो हम खुद हैं। वो हम क्या है? खुद हैं। हमें अपने आप को तैयार करनी है। हम दुनिया की चीजों के अंदर उनको हासिल करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार करना। अगर इस साल में भी हम अपने आप को तैयार नहीं करते, या हमारी जब तक अयाम लिखे हुए हैं तब तक भी हम अपने आप को तैयार नहीं करते, तो यशाया के अंदर मैंने आपको वो वर्ष पढ़ के सुनाई थी कि अगर इंसान 100 साल तक भी 100 साल दिए खुदा ने हमें तौबा करने के लिए, तो अगर वो नहीं करता तो वो मालूम है, लानती है। ये बाइबल बयान करती है। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है उस वक्त से पहले जो ना बहाना तौर पर हम पर आ पड़े और पछतावे के लिए हमारे पास वक्त न रहे। इसलिए बार-बार बाइबल मुकद्दस अंजील जलील के अंदर खुतूतों के अंदर हमें मिलता है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। तो कब हम इसकी तैयारी करेंगे? क्यों जी? सेशन में ज़बूर 51 उसकी पहली और दूसरी और उसके बाद 9वीं आयत भी जरा उसकी कोट कीजिएगा। सुने जरा गौर से। आए खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। ये खुदा का करदार सुन ले कि ज़बूर नवीस क्या कह रहा है। खुदा का करदार आपके सामने, मेरे सामने बयान कर रहा है। क्या कह रहा है जी? ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर क्या कर? रहम कर जी। और अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। किसकी खातिर? अपनी रहमत की कसरत। खुदा रहीम और गफूर है, वो माफ करने में कादिर है, लेकिन हमारे दिल इस कदर सख्त हो गए हुए हैं कि हुदूद के अंदर लिखा है कि लोहे से दागे गए हुए। हम अपने आप को तब्दील नहीं करते जी। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। कौन करने वाला है? कोई दूसरे जमीन पर ऐसी शख्सियत है खुदा का गुनाह करे और सुहेल साहब मुझे माफ करे? नहीं, आदमियों के गुनाह आदमी माफ करे और खुदा का गुनाह खुदा माफ करे। और जो कुछ गुनाह हम कर रहे हैं ये आदमियों का गुनाह नहीं, ये खुदा का गुनाह कर रहे हैं। हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे साथ तो नहीं, क्या करना चाहिए हमें? अपने करदार को, उसको हलीमी, फरोतनी, आजजी दे। और हम खुद ये कर सकते हैं अपने आप को ये चीजें देने के लिए। जी आगे पढ़ते 9। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले। अब देखिए आजजी क्या है? ज़बूर नवीस क्या कह रहा है? इस शख्स के कितने गुनाह थे? अभी नहीं, एक तो नहीं, कई सारे गुनाह थे दाऊद के, एक ही नहीं था। लेकिन वो आजजी के साथ खुदा की हजूरी में आ गया, फरोतनी के साथ उसके हजूर आ गया कि मेरी बदकारी क्या कर मुझसे दूर कर। तो यशाया कहता है कि उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके और ना उसका
آج چھوٹا ہے کہ ہمیں گناہ سے کھینچ نہ سکے، اس لیے ہمیں لازم ہے اسی طرح کی عاجزی، تیرے گناہ جتنے بھی کافی کم ہوں، آپ عاجزی کے ساتھ اس کے ساتھ آئیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو دھو دے گا، برف کی مانند صاف کرے گا۔ جی سے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ کتنی؟ آپ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر ایک تنکے کا بھی گناہ جو ہے وہ نہ رہے، تو یہ کون کر سکتا ہے؟ دوست نے گناہ کس کا کیا؟ ہاں جی، خدا کا گناہ کیا، شادییں، پھر بدسلوکی، قتل کروانا، پھر منصوبے کے ساتھ اسے ایسے پوائنٹ پر بھیج دینا جہاں پر وہ مارا جائے۔ گناہ تھے، اور یہ گناہ جس کے خلاف تھے؟ خدا کے خلاف گناہ تھے۔ ہم بھی ہر روز نہ جانے کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم سے ہو جاتی۔ اس لیے ایوب یہ کہتا ہے نا، کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے۔ ہم ہر روز اپنی باتوں میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، تو پھر کیسے ہم خدا کی حضوری میں کامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہے؟ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں گناہ نہ کرے۔ اس لیے ہم باتوں باتوں میں نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں اور کیا کچھ ہم سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب تک آپ اپنے آپ کو عاجز نہیں کریں گے، خدا اپنی امت کو، اپنی سپر کو آپ کے لیے جاری و ساری نہیں کرے گا۔ اور یہ امت اور سپر کا کیا کردار ہوگا؟ کیوں جی؟ کیا کردار ہوگا؟ خبردار کرنا، ہمارے چگرد پہرا دینا تاکہ ہم گناہ سے محفوظ رہیں، بچے رہیں۔ لیکن جب ہمارے اندر عاجزی نہیں، فروختی نہیں، خدا کے حضور ہم آتے ہی نہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تو وہی ہوا نا جو پولس رسول کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیا ہم وہ اپنے پہ بات کر رہے ہیں، کیا ہم خدا سے زوراور ہیں؟ جب ہم ایسا نہیں کرتے، اپنے اندر آج کی اس کی حضوری میں نہیں آتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم خدا سے زوراور ہیں۔ تو کیا خدا سے کوئی زوراور ہو سکتا ہے؟ زبور 129 کے اندر کیا لکھا ہے؟ ہاں تم نے بار بار مجھ کو ستایا، ہاں بار بار تم نے مجھ کو ستایا، تو بھی تم مجھ پر غالب نہ۔ ہم خدا پر غالب نہیں آ سکتے، ہم خدا پر غالب نہیں آ سکتے۔ اسی لیے ہمیں اگر کسی پر غلبہ پانا ہے تو وہ گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے، ہماری ہڈ گرمی ہے، اور ہڈ گرمی ہمیشہ گناہ کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے، جو خدا کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ اس سے 4 باب کی طرف 24 کی طرف پڑھی گا، 32 4 کی 32 سنیں ذرا غور سے اس بات کو۔ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو۔ دیکھا آپ سن رہے ہیں آپ کہ ایک دوسرے پر کیا ہو؟ مہربان۔ کیا مراد ہوئی کہ ایک دوسرے پر مہربان ہو جاؤ؟ کیوں جی قاضی صاحب؟ ایک دوسرے پر مہربان۔ اب کون سی مہربانی کی ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے؟ ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو، ایک دوسرے کا گناہ معاف کرو، اور ایک دوسرے کو عاجزی سکھائیں، خدا کی حضوری میں آنے کی۔ جی
और नरम दिल हो जिस अब तरह नरम दिल से क्या मुराद है? आज नरम दिल, गोश्त आजिज़ी, गोश्तीन दिल। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है? गुनाह के खिलाफ अपने आप को नरम नहीं करना, बल्कि खुदा की हजूरी में आने के लिए हमें अपने आप को नरम करना है। लिखा है ना अब्रानियों के खत के शुरू के अंदर क्या लिखा है जी? बाप दादा से तरह बता सरा बसरा हिस्सा ब हिस्सा हिस्सा बा हिस्सा खुदा ने नबियों की मार्फत कलाम खुदा के नबियों की मार्फत हम कलाम सुनते रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, और ना जाने हम कब से खुदा का कलाम सुन रहे हैं, लेकिन आज भी तब्दीली कोई दिखाई नहीं दी। मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था, हम कहते रहते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है, आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? इसकी वजह भी कभी आपने सोची है? या मैंने सोची है कि हम खुदा के हुजूर आने के लिए तैयार ही नहीं। दुल्हन तैयार ना हो तो बारात क्या होता है? वापस चली जाती है। कि वो जी हट दमनी दुल्हन उसकी भैड़ी भी हट तक तैयार नहीं। तो इसी तरह हमें मत्ती 25 बाब के अंदर इसका जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह जब आ गया तो 5 तो चली गई, लेकिन 5 भी उनका गुनाह नहीं था। वो हट दरम थी, सुस्त थी। आज भी हम उसी जुमरे में हैं कि आज भी हम हट दरमी करते हैं, चुरा छंड गलियां गिरते हैं। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀ ਵੱਢ ਲੈਣੀ। ये चीजें बड़ी हमारी जिंदगी के साथ अकाउंट करती है। जी आगे क्या लिखा था? जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, इसमें मसीह में जिस तरह खुदा ने तुम्हारे गुनाह यानी कि वसीला यीशु मसीह वसीला बनाकर उसने भेजा है ताकि क्या हो? हमारे गुनाह माफ हो। तो गुनाह माफ करने के लिए, करवाने के लिए हमें क्या करना होगा? खुदा का किरदार तो आपके सामने देखे कि उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि हमारे गुनाह माफ किए जाए। अब हमारा किरदार जो है, हमारी आजिज़ी जो है, हमारी तैयारी जो है, वो क्या है? मसीह यीशु की मानंद बनो। पौलुस ने 2 से 3 मरतबा ये बात कही, मेरी मानंद बनो जैसे मैं मसीह की मानंद बनता जाता हूँ। मसीह मुझ में क्या करता है जी? मसीह मुझसे तरक्की पाता है। जब हम उसके हुजूर आजिज़ी, फरोतनी, ईमान, भरोसे, तवक्कुल के साथ आते हैं तो फिर क्या होता है? मसीह हमसे क्या करता है? तरक्की पाता है। इससे भी एक और चीज निकलती है। अच्छा, मैं ये बात कह रहा हूं कि मसीह हमसे तरक्की पाता है, बताएं जरा इसकी। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਣੀ। हम मसीह के वसीले तरक्की पाते हैं। अगला सवाल ये है, क्यों, कैसे? हम मसीह का बदन है और बदन तरक्की पाता है, पाता है कि नहीं पाता? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारा बदन तरक्की पाए। हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को आजिज़, फरोतनी अपने अंदर पैदा करें। हम कर सकते हैं, हमारे पास ये इख्तियार है। आप मसीही हैं और मसीहों के पास इख्तियार है कि जाओ सांपों, बिच्छुओं को
उछलो और उनकी सारी ताकत कुव्वत पर क्या करो, गालिब आओ। जी सर, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। तो भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। ये एक तरक्की का रास्ता है। वो जरा जैसा दूसरी बात उठा के उसके अच्छा 55 निकाले जरा। उसकी पहली तो दूसरी आयत, ये साल खुदा ने हमें अता किया है, हमें इस साल के अंदर 55 की दूसरी की मेरी तरफ मुतवज्जो हो। अब देखिए आप और मुझ पर बात आ रही है। हम क्या कह रहे हैं ज़बूर वसीला के जरिया से कि हम पर जी मेरी तरफ मुतवज्जो हो। मेरी तरफ मुतवज्जो हो। कौन कह रहा है? खुदा। इंसान। और मुझे जवाब दे। ये इंसान खुदा नहीं कह रहा, ये खुदा का खादिम। मैं गम से बेकरार होकर और गम से जब कब होते हैं जब हम पर मुसीबतें, परेशानी, मौत का साया हम पर गालिब आना चाहता है, फिर हम परेशानियों में न जाने क्या क्या कुछ कर जाते हैं। उठे भी चले जाओ, उठे भी चले जाओ, परेशानी दूर होनी चाहिए। मैं गम से बेकरार होकर त्रासता हूँ। दाऊद ये कह रहा है कि मेरी वो खुदा को मुखातिब कर रहा है, ना कि किसी। उस वक्त बहुत से रहनुमा थे, आलमी शरा थे, फकीह, फरीसी, सदूकी, ये सब कुछ उस वक्त मौजूद था, लेकिन उसने किसी का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो खुदा को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। दूसरी है तो हाँ जी, दूसरी है, तीसरी पर हाँ, लोग ये तो इसलिए ऐ खुदावंद मेरी दुआ पर कान लगा। आप ये कह सकते हैं कि खुदा मेरी दुआ पर क्या कर कान लगा। तो क्या खुदा ऐसा करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उससे बेशतर बनिनो इंसान की वो आजिज़ी देखेगा, नहीं तो वो कभी भी नजर आप पर नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐ खुदा मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत से मुंह ना फेर। तो खुदा कभी भी किसी से मुंह फेरता नहीं, लेकिन हमारी अपनी गलती, कोताही, गुनाह जो है वो खुदा उनसे मुंह मोड़ लेता है, ऐसा कि वो सुनता नहीं। कैसा? ईसाया के इस पे लिखा है, ऐसा कि वो सुनता ही नहीं। वो कहता है दानियल, यकूब, अब्राहम ये भी आके तुम्हारी सिफारिश करें तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। इसलिए हमें लाजम है कि वो हमारी सुने। कभी कभी हम अपने आप को आजिज पे कर लेते हैं, वो सुन भी लेता है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? जब वो सुन लेता है तो हमारा फख्र जो है उन चीजों पर जो उसके सुनने के वसीला से पूरी होती है, उन पर आ जाता है, ना कि खुदा पर। इसलिए बहुत लाजम है कि खुदा हमारी दुआओं को सुने, हमें अपनी दुआओं के ऐन मुताबिक जो खुदा से हम मांग रहे हैं अपने आप को उसकी हजूरी में
पेश करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। साउंड नहीं आते, लाइट नहीं है। तो फिर खुदा हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं होता, खुदा हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं होता। जिस तरह खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आकर दुआ करें, हम आते नहीं और खुदा फिर हमारी तरफ तवज्जो नहीं करता। ज़बूर 66 तरह से पढ़िएगा, उसकी 20वीं आयत। खुदा मुबारक हो। अब देखिए, अगर हमारे बदनों से खुदा मुबारक हो तो कैसी कमाल बात। खुदा मुबारक हो। बोले, खुदा मुबारक हो। खुदा मुबारक हो। ਅਸੀਂ पता नहीं किन्नू किन्नू मुबारक बनाया, मुबारक जुमा बना छड़िया, मुबारक मंगल बना छड़िया, मुबारक सेंट बना छड़े। सेंट इंसान हैं, उनको हमने मुबारक ठहरा दिया। हम तभी मुबारक होते हैं जब खुदा हमारी तरफ क्या करता है, मुतवज्जा होता है, फिर हम मुबारक हैं। खुदा जब हमारी दुआ के मुताबिक हमारी जिंदगियों में काम करता है तो फिर हम मुबारक हैं। जी, खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया। आप देखें, खुदा दुआओं को रद्द नहीं करता। दानियल नबी, मेरा ख्याल हिंदी बात आ रही है। दानियल नबी ने खुदा की हजूरी में दुआ रखी, रोजा रखा और उसकी दुआओं का जवाब मिला था। कब लेट हो गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ। नहीं, नहीं, कितने दिन बाद जवाब आया था? 21 दिन बाद। 21 दिन के बाद जवाब आया था, लेकिन काम खुदा ने उसी वक्त कर दिया था। हम क्या करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा मेरा काम करते लेट हो रही थे, फिर अगले पासे टूट गई, तो ये तो शायद पूरी हुई। लेकिन हम सबर, हमारे अंदर सबर का जो पैमाना होता है वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लबरेज हो जाता है। नहीं छेती छेती होती। बनी इस्राइल 400 साल गुलामी के अंदर रहा, उड़ता रहा। कितना सा? 420 साल। तो 400 साल बाद जाकर खुदा ने उसकी क्या किया, दुआ को सुना। 75 साल की उम्र में खुदा अब्राहम से वादा कर रहा है और पूरी कब हो रही है, जब वो 100 साल का हो गया। तो हम अपनी दुआओं को जब खुदा की हजूरी में रख देते हैं तो उसका यकीन करें, भरोसा करें उसका। नहीं है बात की दुआ की चीज काम नहीं है, मुझे बुला लो जी, पर सफर तुसी आना का ये तरीकेकार नहीं है, ये हमारा ईमान नहीं है, ये हमारा तवक्कुल भरोसा खुदा पर नहीं है। कभी हम कहीं जरा सी चर्च के अंदर नाराजगी हो जाए तो हम खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें हमारी बदनी जिंदगी के लिए, क्योंकि ये बदन उसी का बदन है, इस बदन के वसीला से खुदा अपने नाम को क्या करता है, जलाल देता है। खुदा कहता है कि तुम्हारा बदन मेरा मस्किन है, मकदस है, सॉरी
तो हम अपने मकदस के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं एक पोथी पर मैसेज दे रहा था, तो मैं बात वहाँ पर कर रहा था कि हम दुनिया के कामों के लिए बड़ा तरद्दुद करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर इस जिस्म को संवारने के लिए पता नहीं कि मुंह से भी लाने हैं, खाने भी हैं, ताकि हमारा बदन जोरावर हो जाए। ऐसे बदन जो है वो जोरावर नहीं हो सकता। जोरावर कौन है? यीशु मसीह। क्यों जी? खुदा। बोले तो सही। यीशु मसीह। खुदा जोरावर है। जब वो अपने बदन के अंदर ही नहीं होगा तो जिस्म कैसे जोरावर होगा? जरूर है फिर कि हम खुदा की तरफ अपने आप को फेरते हैं। जब खुदा को अपने अंदर रखेंगे तो खुदा गुनाहों को मिटाने की कुदरत कुव्वत रखता है, क्योंकि वो वहीद रहीम आसमानी जलाली कुदरत और हिकमत से भरा हुआ खुदा है, इख्तियारे कुल है। और उसने कहा है मसीह की इंजील के 28वें बाब के अंदर कि कुल ज़मीन और आसमान का इख्तियार मुझे दिया गया। बहुत जरूरी है कि इसके पास इख्तियार है, बड़े सच्चे दिल के साथ उसके पास है। ये पूरी होगी सर? नहीं आगे कर दे। जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। इस शफकत से वो कि वो गुनाह करने वाले शख्स को भी रोजी रोटी देता है, क्योंकि लूका की इंजील के अंदर ये बात मरकूम है कि वो नेकों और बदों दोनों पर अपना सूरज जो है वो चमकाता है। जिसे सब पढ़ी वाली ज़बूर 69 69 16वीं आयत देखे जरा। ऐ खुदावंद मुझे जवाब दे। अब देखें, अगर आपकी दुआ पूरी नहीं हो रही तो आप खुदा से ये बात कह सकते हैं, आपके पास इख्तियार है। पलूस इस इख्तियार के बारे में क्या कहता है? हम ऐ बाप ऐ अब्बा कहकर मुझे मुतवज्जा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इख्तियार है कि हम उसे ये कह सकते हैं कि मेरी दुआ का जवाब दे। वो काली कोई नहीं करती जी, क्योंकि तेरी शफकत खूब है। अब देखिए शफकत क्या है बच्चों? किसकी? खुदा की शफकत खूब है जी। अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरी तरफ मतवज्जो। किसके मुताबिक जी? अपनी रहमतों की कसरत। रहमत, रहीमो गफूर है वो, रहम करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। इसलिए जो रहम करने वाला खुदा है, हमें उसके हुजूर अपने आप को पेश करना है। ऐ खुदावंद मुझे जवाब दे, मुझे क्या कर? जवाब दे। आपकी राय क्या है खुदा के बारे में? खुदा जवाब देता है कि नहीं? बात वो कम लोगों की है। देता है। खुदा जवाब देता है। देता है। क्यों देता है? वो सुनने वाला खुदा, वो जिंदा खुदा है, हालेलुया। आसमान पर विराजमान है, वो अब तक, बल्कि अब्दियत उसी ने बनाई है। अगर ये फिक्रा हम कहते हैं ना कि वो अब तक रहेगा, नहीं, अब्दियत को जो है उसी ने बनाई है। और वो चाहता है कि बहुत से लोग इस अब्दियत में शामिल हो। तो क्या आप शामिल होना चाहते हैं उसकी अब्दियत में? कौन कौन होना चाहते हैं? तरीकेकार क्यों नहीं? तौबा। कोई गुनाह उलूदा चीज जो है वो आपकी रूह हो, आपका बदन हो, वो
आसमान में दाखिल नहीं हो सकता। आवाज लोग कहते हैं कि वो एरिया भी तो उठाया गया था, हनूक भी तो उठाया गया था, लेकिन वो बदन समेत नहीं उठाए गए थे। जब वो आग का गोला ऊपर से जब आया था तो बदन क्या था, जल के सिर्फ रूह आसमान पर जाती है। और इसका जिक्र सुलेमान दाऊद भी करता है कि रूह जहां से आती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा तदाद है कि अगर हम मत्ती की आयत ये पढ़े कि उससे ना डरो जो बदन को कत्ल करता है, उससे डरे जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में डाल सकता है, वो खुदा है। इसलिए हमें अपनी रूहों का भी ख्याल रखना है, इसलिए कि हम बहुत कुछ अपने बदनों के लिए करते हैं, लेकिन रूह के लिए हम कोई तरद्दुद नहीं करते। इसलिए वो हमारी रूह को और हमारे बदन को भी जहन्नम में डाल सकता है, उसके पास इख्तियार है। हाजी आपकी बात ईसाया 30 बात के बाद उसकी 19 वो तेरी 30 बात और 19 आया। क्योंकि ऐसे यूनी कौम ऐसी यूनिक कौम, यानी कि खुदा के लोगों सुनो, जो यरूशलेम में बसेगी तो फिर न रोएगी। अच्छा ये देखें लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है, जरा बात सब से पढ़िएगा, इसकी जरा थोड़ी सी ऐसे यूनी कौम, ऐसी यूनिक कौम किसको कहा गया? आगे जरा अगला भी लफ्ज पढ़िए, जो यरूशलेम में बसेगी, जो बसेगी, बसी हुई नहीं, लफ्ज पर गौर करें, जो बसेगी कहाँ पर? यरूशलेम में। यरूशलेम, नया यरूशलेम तो आने वाला है, उसमें बसने के लिए ये जिक्र किया गया है कि सियोनी कौम, आप सब सियोनी हैं, वो सब सियोनी हैं जो यरूशलेम में बसेंगे और नया यरूशलेम उतर रहा है आसमान पर। लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, मुकाशवा की किताब के अंदर, नई जमीन नया आसमान होगा। तो ये उन्हीं के लिए जिक्र किया गया है जो उसमें नजदीक अपने बदनों की कुर्बानी दे, यानी कि उस गुनाह को जिसका जिक्र मत्ती में किया गया है कि हर कोई क्या करे, अपनी सलीब उठाए। ये अपने गुनाहों से बख्शिश है, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाह माफ किए। ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जरा गौर से करो उसकी का हाँ भी शुरू गौर करती कर रहे हैं। खुदा का सिस्टम में तो बांधी नहीं कर सकती तो बंदी के लिए जी यरूशलेम में बसेगी तो फिर ना रोएगी। फिर ना रोएगी, वहां ना रोना, ना दांतों का पीसना होगा, ना आपको प्यास सताएगी, ना भूख सताएगी, और ना जी वो तेरी फरियाद की आवाज सुनकर यकीनन तुझ पर रहम फरमाएगा। आपकी फरियाद आजिज़ी के साथ होगी तो आप यरूशलेम में बसने वाले लोग हैं। किसमें बसने वाले? यरूशलेम। यरूशलेम में क्या होगा? वहां पर क्या होगा? अगर हम चले फिर फर्स्ट चले जाते सोने सरकार अब याद सोने दिया हीरे जवाहरात जो हैं वो 12 दरवाजों पर लटकते होंगे, और वहां का चिराग लिखा है आपका और मेरा दूसरा होगा। वो वहां पर ना सूरज होगा ना चांद होगा, आपके और मेरे यीशु मसीह की वसीला से वो सब रोशन हालेलुया। जी
वो तेरी फरियाद की आवाज़ सुनकर यकीनन तुझ पर रहम वो फरमाएगा। हमारी फरियाद की आवाज को सुनकर यकीनन हम पर, ये देखिए लगभग होकर यकीनन, शक नहीं है। पता नहीं वो फिर दुआ सुनता है कि नहीं सुनता। इस तब किसी चीज में हम शक पैदा कर देते हैं ना, तो फिर ये बातें हमारे लिए नुकसान देंगी। वो सुनते ही तुझे जवाब देगा। कैसे? सुनते ही जरा बोले कैसे जवाब देगा? सुनते ही जवाब। सुनते ही, यानी कि आप फर्क देख लें जमीन और आसमान का, कि वो आपकी दुआ को सुनते ही, लेकिन इसके पीछे वही दोनों चीजें आ जाती हैं जो मैंने स्टार्ट में कही, खुदा का किरदार और बनीनो इंसान की आजिज़ी। तब वो हमारी दुआ को सुन के हमें फौरी जवाब देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को इस तरह उसी में ढाल दें, उसी में अपने आप को पेश कर दें कि जैसे ही हम मुंह से बात निकालें, और वो सी बातें हैं जो सोची जाती हैं और उससे पेशतर हो जाती। खुदा इतना नजदीक है हमारे, देखिए ना, क्या नाम था वो बच्चा मरियम के खामन का? यूसुफ। याद अभी वो सोच ही रहा था, तक करके फरिश्ता आ गया, और नहीं भाई है नहीं, ये काम एंगे। खुदा सुनता है जब हम आजिज़ होते हैं, तो खुदा हमारी रहनुमाई करता है, हमें बुराई की तरफ से रोकता है। तो यूसुफ क्या करने लगा? सहाइफ के अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जने, और उसका नाम यीशु रखा। ये उसी यीशु की खातिर आज भी यीशु खुदा हमें माफ करने की कुदरत आमीन। आज चंद लोगों पर इस साल के अंदर अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें, सोचे समय इस साल के अंदर हम उस बात से